أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مشہور و معروف حدیث ہے حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. صرف بچوں کے لیے 3 چیز عرض کرنا ہے: عزادار، عزاداری اور شیعہ. اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. پھر انشاءاللہ کل عزادار کو کیسا ہونا چاہیے، عزاداری کیسی کرنی چاہیے، فرش عزا کہاں بچھے، کس جگہ جانا چاہیے. اور جانے کا مطلب یہ نہ ہو کہ دکھاوا ہو. اہل بیت کے یہاں دکھاوا قبول نہیں ہے. اہل بیت کے یہاں خلوص چاہیے. عزیزان محترم، مشہور و معروف حدیث حسین منی و انا من الحسین موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی اس موضوع سے ہٹ کے تھوڑا سا اس سے گفتگو کر لیا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ کل بات کی جائے گی موضوع پہ. عزادار، عزیزان محترم، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عزادار جو ہے صرف لباس اور مکان تک محدود نہیں ہے کہ لباس کو بدل لیا جائے، لباس کو تیار کر کے عزاداری میں جایا جائے. یہ عزادار نہیں ہے. یا اپنے مکان کو اتنا خوبصورت مکان کو سجائیے، سنواریے، اس لیے کہ کنیزان سیدہ آتی ہیں. اگر آپ معرفت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو فرش مجلس پہ اہل بیت آتے ہیں. اگر آپ اپنی نگاہ سے دیکھیں گے تو اہل بیت نظر نہیں آئیں گے. صلوات محمد والے عزیزان محترم، صرف لباس کو بدل لینا یہ عزادار نہیں ہے. عزاداری، اگر آپ ماتم کر رہے ہیں، دستہ لگا ہوا ہے تو آپ کا دانت نکلا ہوا ہے تو یہ آپ کی عزاداری قبول نہیں ہے. اگر آپ ماتم کر کے یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں، امام سجاد علیہ السلام معصوم کی حدیث سے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے بابا پہ گریا کرتا ہے تو اس انداز میں گریا کرے جیسے اس کے بڑے گھر سے جوان کا لاشا نکلا ہو. میرے گھر سے تو 72 جوان مارے گئے. امام سجاد بیان کرتے ہیں کہ عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روڈوں پہ جلوس نکالا جائے، گلیوں کوچوں میں ماتم کیا جائے، بلکہ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر ہی میں پہلے اپنے گھر کو عزاخانہ بنایا جائے، پھر اپنے گھر سے آباد کیا جائے. کہ امام صاحب نے مولا امام حسین نے اور جناب سید سجاد نے کیا درس دیا ہے. یہ ہے عزادار اور عزاداری. عزیزان محترم، میرے دماغ میں جو ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات ذہن میں آئی. میں ڈائری میں لکھا ہوا تھا. ڈائری میں نے سب سے پہلے جو بات دیکھی تو علامہ مجلسی جو لٹیرے تھے راتوں میں ڈاکہ ڈالتے تھے، وہ آقا کی بہت تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس لیے کہ ڈرتے تھے کہ عالم ہیں. ان کے احترام نوازی میں جہاں دیکھتے تھے گنڈے تھے، بدماش تھے، لیکن کھڑے ہو جایا کرتے تھے. عزیزان محترم، دیکھیں فرش عزا ہوتی کیا ہے، کہاں بچھانا چاہیے. ایک مرتبہ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ علامہ مجلسی آ رہے ہیں، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، آقا کو سلام کیا، کہا کہ دیکھیے مجلس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی جگہ نہیں ہوتی، مجلس جہاں چاہیے وہاں کر لیجئے، لیکن خلوص ہونا چاہیے، میں نے پہلے کہا ہے. ایک مرتبہ دیکھا تو آقا، یہ جتنے آقا کے پیچھے تھے، علامہ مجلسی کے پیچھے تھے، ان کے شاگرد ایک مرتبہ گھبرا گئے، ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہیں یہ بے حرمتی نہ کر دے، کہیں آقا کا مذاق نہ اڑانے لگے، کیونکہ یہ گندے تھے، گندے مزاج کے تھے. ایک مرتبہ آگا آگے بڑھنے کے بعد یہ کھڑے ہوئے، جو گنڈے تھے، ایک مرتبہ سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگے آقا کافی دن ہو گئے ہیں ہم نے مجلس حسین نہیں کی، آپ مجلس حسین پڑھیں، ہم باادب بیٹھ کے مجلس حسین سنیں گے. ایک مرتبہ آقا کہتے ہیں کہ چلو کہیں گھر کے پاس چلتے ہیں جہاں سیڑھی ہوگی وہاں ہم بیٹھ جائیں گے، وہاں مجلس پڑھیں گے. عزادارو عزیزان محترم،
आगा गए, जाने के बाद देखा कि घर है जहाँ पे सीढ़ी है वहाँ बैठ गए। देखिए न वो मजलिस का वक्त होता है न जगह होती है, जहाँ दर्श देना चाहिए वहाँ दर्श दिया जाता है, क्योंकि नॉलेज यहाँ से मिलता है, बच्चे यहाँ से वकार होते हैं। सवाल पढ़े मत वाले। आगा जाने के बाद बैठ गए। बैठ जाने के बाद जो 4-5 गुंडे थे जो रातों में डाका डाला करते थे, चोरी किया करते, उनसे पूछते हैं कि देखो तो मैं मजलिस ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये बताओ कभी तुमने किसी के साथ नाफरमानी की, कभी किसी का दिल दुखाया, कभी किसी को तकलीफ दी, कभी किसी का दिल आज़ारी किया? एक मरतबा कहने लगे अल्लामा मजलिसी से, आगा कैसी बात कर रहे हैं, हम तो चोर जरूर है, लेकिन हम जो लोग उसके साथ बड़ा एहसान करते हैं, जो हमें रातों में पनाह दे दिया करता है, जो हमारे साथ शफकत के पेश आया करता है, जो हमारे साथ जो है मोहब्बत से पेश आया करता है। एक मरतबा आगा मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहते बस तुम्हारी यही आदत है कि जिसका तुम खाते हो उसके साथ तुम नमक हरामी नहीं करते? कहते हैं हाँ आगा, अगर हम जिसका खा लेते हैं तो उसके साथ नमक हरामी नहीं करते। तवज्जो चाहता हूँ अजीजान मोहतरम, ये सुनना था। आगा रोने लगे, रो के कहते हैं अभी से लेके तुम्हारी जितनी उम्र है तुमने नमक हरामी की है। अजीजान मोहतरम आगा से परेशान हो गए, कहते हैं आगा कैसी बात कर रहे हैं, हमने किसी के साथ कभी नमक हरामी नहीं की। अजीजान मोहतरम इतना सुनना था। आगा ने कहा तुमने की है। एक सलात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगा से कहते हैं परेशान हो गया, अल्लामा मजलिसी से कहते हैं कि हमने कहा नमक हरामी की है, आप कह रहे हैं नमक हरामी की है। कहा आगा ने कि तुमने माँ के पेट से लेकर अभी तक दुनिया में तुम नमक हरामी कर रहे हो। इतना सुनना था कि अल्लामा मजलिसी ने कहा कैसे? अल्लामा मजलिसी ने कहा कि तुमने खुदा के साथ नमक हरामी की है। इतना सुनना था, कहा कि जो खुदा तुम्हें रिस्क देता है उस खुदा पे तुम्हें भरोसा नहीं है, तुमने उसके साथ नमक हरामी की है। एक सवाल रहमत वाले अल्लामा मजलिसी ने कहा अगर तुम्हें भरोसा होता खुदा पर तुम रात में डाका डालते, ना लोगों की इज्जतों को पामाल करते। एक सवाल रहमत वाले ये है उलमा जिन्होंने माशाअल्लाह से काम किया, जिन्होंने बताया कि दुनिया है क्या। आप मौलाए कायनात इमाम हसन और हुसैन को छोड़ दीजिए, इनके शागिर्दों को देखिए ये करते क्या है। अल्लामा मजलिसी ने जो किताबें लिखी है वो हर मुफक्किर सोचने पे मजबूर हो जाता है उनकी किताब पढ़ने के बाद। जो अल्लामा मजलिसी ने रहमतुल्लाह अलैह ने काम किया, अजीजान मोहतरम ये है अल्लामा मजलिसी, इन्होंने दर्स दिया, देने के बाद इनके कदमों पे गिर के तौबा की, इस्तग़फ़ार किया, कहा अल्लामा आज के बाद कोई ऐसी नसीहत करें जिसके बाद मेरे जिस्म में तब्दीली हो। तो अल्लामा मजलिसी ने कहा कि जाओ, 2 चीज कहता हूँ, जाने के बाद अपने घर में काम करना, नमाज तहज्जुद पढ़ना और कभी किसी से झूठ ना बोलना है। सलात पर अल्लामा मजलिसी ने कहा कि जाओ, तुम्हें खुदा भी माफ करेगा अगर तुमने ये 2 काम किया, तौबा इस्तग़फ़ार किया, रात की तन्हाई में खुदा को याद करना। और देखो कभी किसी का दिल दुखाने के लिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई काम भी करना तो कभी झूठ ना बोलना, इसलिए कि अगर झूठ तुमने 1 बोला तो 70 झूठ पैदा होंगे। एक सलवार पर अज़ादारी और अज़ादार अजीज़ान ईमान, आपने अक्सर व बिस्तर उलमा से सुना, दिन से और शाम तक की मजलिसें सुनी, आपने हर उलमा से इस्तिफादा किया। अब बहरहाल हमने भी किया, लेकिन इस्तिफादा करने का मतलब ये नहीं कि घर आए या जाने के बाद भूल गए कि पढ़ा क्या। अगर जो जाकिर आपको नमाज से दूर करे वो अहले बैत का जाकिर नहीं। मैं मिंबर से कह रहा हूँ, अगर जो जाकिर, जो खतीब आपको नमाज से दूर करे और अज़ादारी को बढ़ाते, अज़ादारी है लेकिन नमाज के बाद नहीं, नमाज पहले है, अज़ादारी बाद में है। इसलिए कि जो इमाम हुसैन ने काम किया है वो नमाज के लिए काम किया, नमाज बच जाए, रोजा बच जाए, हज बच जाए, ज़कात बच जाए, बहरहाल ये नाना का जो दीन है ये सब बच जाए। ये यजीद क्या चाहता था? हलाल मोहम्मदी को हराम करना, हराम को हलाल करना चाहता था। अगर आपको जो है कोई अम्र बिल मारूफ के तरफ ले जाए, नहीं अनिल मुनकर से रोके, तो असल में वो अज़ादार है। एक सलात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अदादार करेक्टर साज होना चाहिए, अदादार बाइखलाक होना चाहिए। अगर आप कहीं से भी गुजरे तो आपसे लोग ये ना कहें कि फलां का लड़का है, बल्कि आप अगर लिबास पहने हैं तो लिबास से लोग देख के पहचान जाए हुसैनी है। करेक्टर ऐसा होना चाहिए, किरदार ऐसा होना चाहिए आपका कि अगर आप कहीं से भी गुजरे तो लोग आपको देख के आपको सलाम कहें कि हाँ, जब इसका ये चाहने वाला ऐसा है तो इसका इमाम कैसा होगा। बहुत से इमाम गुजरे, मैं बताऊंगा इमामों ने क्या 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 एहसान किए हैं आप पे, इमाम ने कितने एहसान किए हैं हम पे, इमाम ने क्या क्या छोड़ के गए हैं हमारे लिए, लेकिन हम लोग इस्तेफादा नहीं करते, हमारे आंखों से ओझल थे, हम देखते नहीं, हमें दिखाई नहीं देता कि इमाम ने हमारे लिए क्या किया। इमाम ने इतना आपके लिए किया कि आपकी पहचान बढ़ा दी कि हमारे शिया हो। क्या ये आपके लिए कम है कि आप पहचाने जाते हो तो शिया के लिए। अदादारों, क्या जनाब सैयद सज्जाद से आपने नहीं सुना वक्त आखिर इमाम ने क्या कहा, बेटा कैद से जब छूट के जाना तो हमारे शियों को सलाम कहना। आपकी पहचान दी है इमाम ने कि हमारे शिया ऐसे होते हैं, हमारे मुहीब हुए ऐसे होते हैं। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अदादारों, आपको मालूम है कि इमाम ने रास्ते में चांद देखा। लोग वतन में चांद देखते हैं तो खुश होते हैं, अपने लिए दुआएं करते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन इमाम ने जानते हैं चांद रास्ते में देखा, नजफ से आगे देखा। इमाम का काफिला कल करबला में पहुंचेगा। इमाम ने, मैं अभी मुतालिया कर रहा था तो मिला कि नजफ से आगे इमाम ने चांद देखने के बाद कहते हैं इमाम, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदादार, जैसे इमाम ने चांद देखा, अब्बास ने पूछ लिया, भैया ये इन्ना लिल्लाह का वर्ड क्यों पढ़ा? कहा, अब्बास ये मेरी लुटी हुई कमाई है। अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे। अदादार, एक मर्तबा इमाम को रास्ते में खबर भी मिल गई कि मुस्लिम मार दिए गए, लेकिन मुस्लिम की ज़ौजा को जो है दिल बेकरार है कि मुस्लिम के साथ छोटे छोटे बच्चे गए हैं, पता नहीं वो बच्चे कहाँ है, किस हाल में है, माँ की ममता भड़क रही है। अदादारों, इमाम को पता है, इमाम वक्त का इमाम होता है। अदादारों, मुस्लिम की शहादत की खबर आ चुकी है। एक मर्तबा ये बच्चे, आपने पूरा मसाइल सुना हुआ है, लेकिन चंद जुमले मुझसे भी सुन लीजिए ताकि मुझे सवाब हो जाए, सैयदा इस मजलिस को कबूल कर ले। अदादार, एक मर्तबा इमाम जैसे ही एक मर्तबा छोटे छोटे बच्चे रात की तारीकी में भटकने लगे। अल्लाह, खुदा कोई गम न दे। एक मर्तबा शाम हुई तो ये बच्चे जाके पेड़ के ऊपर बैठ गए। बैठ जाने के बाद एक कुआं था, पेड़ के नीचे एक तालाब, एक कुआं था। एक मर्तबा बच्चे एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के कहते हैं, भैया अभी तक मेरे बाबा नहीं मिले, भैया अब लगता है कि बाबा नहीं मिले। एक बच्चा इतना बड़ा होगा, 8 या 9 साल की उम्र बताई गई है। अदादारों, महसूस करना दर्द होगा। अदादार, एक मर्तबा बड़ा भाई कहता है, हाँ हाँ बाबा मिल जाएंगे, सब रखो। अदादार, इतना सुनना था कि एक कनीज आती, आने के बाद पानी को भरती है। एक मर्तबा आप जानते हैं जब पानी साकित होता है, यानी पानी जब ठहरा हुआ होता है, रुका हुआ होता है, तो आप पानी के में नजर डालेंगे, यानी झांकेंगे, अपनी जुबान में बता रहा हूँ, तो आपकी तस्वीर दिखाई देगी। एक मर्तबा जैसे ही वो मोमिना डोलचे को लेके कुएं में बढ़ी तो क्या देखा, नन्हे नन्हे बच्चे, यानी चांद से जैसे चमकते बच्चे पानी में दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह, एक मर्तबा मोमना जो कहती है, एक मर्तबा आपने अपने आसर को बुलंद किया, बुलंद करने के बाद कहती है, बच्चे तुम उतर रहो, कहाँ से आए हो, किसके घर के? एक मर्तबा बच्चे डरे हुए थे। एक मर्तबा बच्चों ने कहा है मोमिना, बच्चे नहीं जानते थे कि ये कौन है, बच्चे नहीं होते। एक मर्तबा मोमिना कहती है कि मैं अमान देती हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। अज़ादारों, बच्चे माँ से भी भटक चुके हैं, बाप से भी भटक चुके हैं, बच्चों को तरस आ गया, शायद ये मुझे अमान देगी। अदादारों, बच्चे उतरे, उतरने के बाद ये घर ले गए। एक मर्तबा मुंह धुलाया, मुंह धुलाने के बाद खाना दिया। एक मर्तबा बच्चों की आंख लग गई, क्या देखा, मौलाए कायनात आए हैं, कहते हैं मेरे फर्जंदो, मुझसे तुम बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हो।
अजरुकमुल्लाह अज़ादारो बनी असद के घर के बच्चे थे। उठे, उठने के बाद वजू किया, नमाज पढ़ी, कहा बड़ा भाई समझ गया कि अब हमारी आखिरी रुखसत है, बस हमारी आखिरी रात। एक मर्तबा सुबह हुई, हारिस ने देखा खटपट घर में से हो रहा। एक मर्तबा घर में दाखिल हुआ तो क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे सहमे हुए कोने में बैठे हैं। अज़ादारो तसव्वुर करो जो बच्चा कितना डरा है। अज़ादारो एक मर्तबा हारिस